Okay, now it's recorded. So quadratic function is in fact polynomial functions of degree 2. पता है what is degree? Highest power of the polynomial. Highest power of the variable or polynomial is called degree. Clear? So the general form of this quadratic function is, f of x equal to ax square plus bx plus c, where leading coefficient a, इस a को हम क्या कहते हैं? This is known as leading coefficient. So this cannot equal to why, because आप माइक बंद कर दें, अगर जरूरत हो तो ऑन करें. फरीना, सायरा, माइक ऑफ कर लें. Okay, so why this leading coefficient cannot equal to 0? Why? Because as you know that when this leading coefficient will 0, then this will be not a polynomial of degree 2. Why? Because we need degree 2, so that's why this must be non-zero. Clear? और इसके अलावा बाकी रियल नंबर हो सकते हैं. तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने, क्योंकि इसको हमने डिटेल में पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो वंस अगेन मुझे बताएं, if I write f of x equal to, let's suppose, x square. Clear? What will be the graph of this function and what is in fact range? ये पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड होगा? सर ये अपवर्ड होगा पैराबोला. Yes, very good. Upward. और if I write g of x equal to, for example, negative x square, now what will be the graph? Downward, sir. इस तरह होगा ना? Yeah. Okay, what is a here? What is a here? 1, sir. So can we say if our leading coefficient a is positive, clear, then the parabola will be in general upward, and here in this case, when the leading coefficient negative, then this parabola will be Downward. Can I generalize, or this is particular for this example? Sir, you can generally say that if Yeah. a is greater So, than 0, मुझे what is the range? Now what is the range of this f of x? This f of x will always greater or equal to 0. Clear? Positive. Yes, sir. 0, and here the range of this g of x will always negative, including Negative. 0, less than or equal to 0. Yeah? Sir? Yes. Sir? Yes, sir. और हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो, लेट सपोज if we have a positive, clear, then अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा. Yes, sir. अच्छा, अपवर्ड होगा तो मुझे बता सकते हैं इसके पास मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? Minimum. सकते हैं ये वर्टेक्स है ना, दिस वर्टेक्स भी, या यहाँ पर इस वर्टेक्स को देखें, जब हम एक पॉजिटिव की बात करते हैं, देन यू कैन सी हियर कि दिस वैल्यू इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम द पैराबोला. इफ दिस पैराबोला इज अपवर्ड, देन this point b, so this is in fact smallest. So if a is positive, then the f of x can contain minimum value. Yes or no? और यस सर. Yes, sir. इस केस में देखें, अगर a आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वाली पॉइंट क्या होगी? Maximum. तो हम लिख सकते हैं contains minimum value, and here it contains maximum value. तो अब क्वेश्चन इस तरह है कि how you can determine that minimum and maximum value. For example, if I, and you can easily convert any quadratic form, a general form, into this completing square. Completing square.
where x minus left, for example, h square plus k. When you convert any quadratic Yes, sir. complete square form, so here how you can determine the vertex from this form and what is h, a, and k. Clear? Okay. So for example, if I give you a particular example, x minus 3 whole square. Okay, let give you the particular example, then you can easily understand. Okay, assume a1 for simplicity. If I am giving you h as a 3, for example, any value, clear, and plus, for example, 2. Here you can say that, okay, as you know that, okay, as you know that f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हम जब बात करते हैं तो हमें ये पता है कि दिस एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 0. यस और नो? कभी इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी एज आउटकम. सर अब ये स्क्वायर है ना, इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर है ये वाला टर्म जो है ना हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा. दिस विल बिकम ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 0. क्लियर? यस और नो? और क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0. इन जनरल हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर ये पॉजिटिव है, लेट सपोज ए, फिलहाल मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ठीक है. तो अगर ये ए पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर A1 पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो क्या करते हैं हम, ये वाला क्वांटिटी जो है ना, ये वाला टर्म जो है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है. जब ग्रेटर और इक्वल 0 होता है तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं ना, 0 होगी. ये सनो अब जो भी एक्स पुट करें तो ये वाला टर्म हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 आएगा. आप लेट सपोज 1 पुट करें, 2 पुट करें, मगर एक नंबर एक्स आएगा जिस पर अगर आप पुट करें तब जैसे 0 आए तो वो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी. मुझे बता सकते हैं कहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इसकी? 3 माइनस 3, मतलब इसको करेंगे तो आपको 3 मिलेगा ना. अच्छा, और उसके बाद ये इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये तो आपको वैसे कांस्टेंट आपका आउटकम आएगा. जब आपका ये सिमालिस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिमालिस वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि ए पॉजिटिव है तो इसके पास पैराबोला अपवर्ड होगा, तो ये सिमालिस वैल्यू आएगी. तो इस तक पहुंचने के लिए आप कहेंगे एफ ऑफ 3 विल बी सिमालिस वैल्यू, ठीक है. और वो कितनी होगी पुट करेंगे तो कंप्लीट वेनिश हो जाएगा, 0 आपको 2 मिलेगा, ठीक है. तो जो वर्टेक्स होगा वो इनफेक्ट आ जाएगा 3,2. ये सनो. Yes, और sir. तो इस केस में वर्टेक्स जनरल, अब मुझे बताएं, इन जनरल वर्टेक्स विल बिकम Yes, sir. h कामा H comma K. दूसरा केस देखें, अगर आपके पास कोई लेट सपोज f ऑफ x हियर a x minus h whole square plus k, this time let assume a is negative. क्लियर? तो जब a नेगेटिव, आपको ये पता है कि f ऑफ x अगर मैं नेगेटिव x स्क्वायर लिखता हूँ तो अब f ऑफ x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल 0. ये सुनो, क्योंकि a नेगेटिव है तो इस टर्म की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, मतलब कम a के साथ, ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमेशा लेस देन और इक्वल 0, ठीक है. आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा उसको नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है. तो जब नेगेटिव है तो इसमें आप लोग इसकी हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू यू कैन डिटरमाइन इजीली, दैट इज 0. क्लियर? तो अगर मैं h की जगह x की जगह h पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये वेनिश हो जाएगा. मतलब मैं आप लोगों से मालूम करना चाहता हूँ व्हाट इज f ऑफ h, तो ये 0 हो जाएगा, यू विल गेट k. क्लियर? सो इन दोनों केसेस में वर्टेक्स आपको मिल रहा है h कामा k, मगर आप a को देखेंगे, अगर a नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है ना k, वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा. ये सर. और इस केस में क्योंकि आपका a पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है k, ये आपका मिनिमम है, ठीक है. इस चीज को मैं आप लोगों को बुक से दिखा रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाएंगे. ये ऑलरेडी हमने किया था, मगर अब हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है. और आपको ये पता हो कि किस तरह हम इस quadratic function को ना complete square form में, in order to get vertex you had convert this f of x 2x square plus 8x plus 7 into complete square, ठीक है. तो आप लोग
कुछ ए डॉट सेपरेट करके ना इजीली कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो नाउ दिस इज स्पेशल फॉर्म, क्लियर, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब आप देखें कि व्हाट इज एच एंड व्हाट इज के हियर। -2, -2, 1 -2, 1 इसका वर्टेक्स है। वाई? बिकॉज ए इज योर पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो ये वर्टेक्स मतलब -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो क्या होती है? और एक्सिस ऑफ द पैराबोला और सिमेट्री ऑफ द पैराबोला एक ही बात है। एक लाइन होती है वर्टिकल, ये लाइन, ठीक है, सेंटर से जो कट करती है। वर्टिकल x इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी? -2 H sir. और -2 जनरल हमारा वर्टेक्स होता है h का k। तो बताएं Yes sir. यहाँ पर इस लाइन पर जो, अच्छा सिमेट्री ऑफ लाइन क्या होती है कि देयर इज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम व्हिच द ग्राफ और पैराबोला विल बी symmetric with each other, यानी कि that will give you the mirror image if you fold the parabola according to this line, clear, x equal to -2, then you will get the mirror image of this one and this one, clear। तो वो इन जनरल हमारे पास होता है x इक्वल टू H. वर्टेक्स आपके पास होता है इन जनरल h का k होता है। तो जो वर्टेक्स में x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी और वो सिमेट्री ऑफ x एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर के लिए y इक्वल टू 0 जो लाइन थी, सॉरी x इक्वल 0 लाइन थी, वो सिमेट्री थी। इसी तरह आप अब कोई भी पैराबोला बनाएं तो उसकी अपनी अलग से x होती है। इन जनरल वो वर्टेक्स में जो h का कंपोनेंट होता है वो होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कि ये अगर मैं इस पैराबोला को देखूं तो h हमारा 3 है ना, तो इस 3 के साथ अगर मैं लाइन बनाऊं इस तरह वर्टिकल, तो ये लाइन जो है ना बनेगी symmetry or axis of parabola. Is it clear? अब क्वेश्चन इस तरह है, ये आप लोग इजीली पर्टिकुलर केस में कर सकते हैं, मगर अब जनरलाइज करते हैं हम, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म उसका वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में? तो मैं जनरल में आप मेथड बता रहा हूँ, पर्टिकुलर आप इसमें फॉर्मूले में पुट करते जाएं, ठीक है। तो मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बना रहा हूँ, मुझे आप लोग बताते जाएं कि किस तरह है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को जहाँ पर मसला हो तो आपने बताना है। मैं a कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि a आपको पता है कि नॉन जीरो है, तो हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। सो दिस विल बिकम x² प्लस bx upon a Can I write yes or no? yes sir Yes sir. क्या किया है मैं, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आपको पता है, जब आपके पास इस तरह तीन चीजें हो a² प्लस 2ab प्लस b², तो आप इजीली इस चीज को ना लिख सकते हैं ना। ये मैं रफ वर्क साइड पर कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। सो आई नीड इनफेक्ट दीज 3 टर्म्स। सो यहाँ पर आप देखें ये टर्म ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। ये b और
टू बी और ए था, हमें दरमियान में 2 चाहिए, तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है, ताकि फार्मूला बने। और ये तो ए आपका x है और ये 2a आ गया, तो दरमियान में ये b बचेगा ना, मतलब 2ab की प्रोडक्ट है ये वाला टर्म, ठीक है। तो a आपका x है, 2 फार्मूले का है, और ये दरमियान वाला b बनेगा। तो इसका स्क्वायर मिस था, जिसकी वजह से मैंने b का स्क्वायर जो है ना 8 किया। अब 8 का किया तो बैलेंस के लिए सेपरेट भी करना पड़ेगा। अब अगर ये 8 और सेपरेट किया तो इस ओरिजिनल में ना कोई फर्क नहीं है, इक्वल सेम रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताएं इन तीनों टर्म की जगह में क्या लिख सकता हूँ। जिस तरह इन तीनों टर्म के लिए मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे ही मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ, ये लिखूंगा x minus x plus b upon 2 x प्लस बी whole square होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, minus v square upon 4 square. प्लस को पहले लिखा है, माइनस के बाद में लिखा है, ठीक है। Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं? No, sir. क्या होगा एलसीएम इसका, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये Yes, होगा sir. 4ac माइनस 4 b स्क्वायर। minus v square. आई थिंक दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, और यहाँ पर आप इजीली मुझे वर्टेक्स बता सकते हैं। यस, व्हाट विल बिकम वर्टेक्स, Yes, sir. Sir, minus b Minus v upon upon 2a. कामा 4 और 4ac minus v square upon 4 square. एक और स्टेप कर लेता हूँ मैं, a मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये एक 8 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा a x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। क्लियर? तो अब मुझे बताएं, तो दिस इज रिटन एज a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस प्लस k, ठीक है। तो h का मतलब मुझे बताएं k क्या होगा, K 4ac minus b square upon 4a. और ये वर्टेक्स आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वर्टेक्स पैराबोला की। Minimum positive है. अच्छा इसको अच्छा मिनिमम क्यों, ए मैंने A पॉजिटिव, positive. Yes, sir. ए पॉजिटिव, एक तो जस्ट नॉन जीरो लिया मैंने। तो अब बताओ मैक्सिमम होगी मिनिमम। अच्छा ये वर्टेक्स होगी टर्निंग पॉइंट, जिसको कहते हैं, आप लोग चेक करेंगे ए की वैल्यू को, ठीक है। चेक फॉर ए, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है, लेट अज्यूम ए पॉजिटिव, तो बताएं क्या होगा, फिर से minimum. मिनिमम कौन सी होगी। अच्छा इसमें दो वैल्यू हैं, एक इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू और इसको हम कहते हैं मिनिमम होगी या मैक्सिमम वैल्यू। मगर वो कहाँ पर होगी, जब आप ये चीज पुट करेंगे, यानी कि ये है आपका f ऑफ नेगेटिव b ओवर 2a will equal to 4ac minus b square over 4a is मिनिमम होगी ना, Yes, sir. ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि दिस मिनिमम वैल्यू नॉट दिस वन। अच्छा मुझे बता सकते हैं साइमेट्री एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, Yes, sir. Minus v upon 2a. क्या लिखूं मैं, एक्स और वाई, X. नेगेटिव बी और 2a एक्स, ठीक है। ये पैराबोला। और इसी तरह अगर आप नेगेटिव करेंगे तो ये फिर सेम वैल्यू होगी मगर वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। Sir. अच्छा इसने के को इस तरह लिखा है, चेक करें क्या ये वही सेम चीज है या डिफरेंट है। अगर हम 4 के साथ डिवाइड करें,
सर इसने एलसीएम नहीं ली। यस 4a के साथ डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a। हाँ सर सेम ही तो है। सेम आएगा सर। ठीक है c माइनस एलसीएम ले सेम होगा। यही है ना। यस सर। ओके तो आप यहाँ पर Yes, देख sir. सकते हैं कि दिस इज इन फैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्लियर वेयर द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव b और 2 या आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे या वो चीज पुट करें एक ही बात है जब आप b और 2a पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा जीरो हो जाएगा यू विल गेट दैट दिस इज इन फैक्ट दिस इज नथिंग दैट इज k ये जो k है उसी को इसने लिखा है दूसरे लफ्जों में ठीक है। Okay, consider the function f of x equal x square plus bx plus c. The vertex of this function will become this one, as you know. And if a is positive, then f is minimum value 8. मतलब x की वैल्यू है ठीक है जिसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कहते हैं और मिनिमम वैल्यू होगी आप ये चीज x की जगह पुट करेंगे और वो सेम ही आ जाएगा k ठीक है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac और इसी तरह रीड करें जरा ये आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल। यहाँ तक किसी को परेशानी हो No, sir. हाँ सर क्लियर है। तो ये आप 2.1 में आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। स्टार्ट नहीं की सर अभी तक लेकिन हो सर जाए। हाथ भी नहीं लगाया। हाथ लगा देना आप लोग। हो जाएगी सर 2.2 पे। सर एक दो सवाल करा दें सर लास्ट वाले। एक दो कौन सा सर सर वो एप्लीकेशन एक में से थोड़ा एप्लीकेशन वाला सवाल करवा दे सर वो पाथ ऑफ अ ड्राइवर वाला। एक मिनट कौन सा मुझे बताएं ड्राइवर वाला। सर ड्राइवर वाला मतलब नंबर कौन सा है 67। सर एक क्वेश्चन और है ना सो जो बेस बाल वाला है ना वो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा समझा दे। सो पहले भी हमने एक्सरसाइज था उसमें भी बेस बाल वाला क्वेश्चन था वो भी नहीं हुआ था समझ भी नहीं आता ये बेस बाल कौन सा वाला। यस सर ये वाला 67 सर। 67 इसकी बात करें आप वहां से यस ड्राइवर हाँ सर। सर ये समझ नहीं आया था ये वाला ये इसमें बाल दोबारा समझा आते दें। हैं ये तो पाथ ऑफ ड्राइव है पाथ ड्राइवर इज मॉडल बाय दिस वन क्लियर ये पैराबोला फंक्शन का मॉडल है इसका पाथ ठीक है वेयर एफ ऑफ एक्स इज द हाइट इन फीट एंड एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम द एंड ऑफ द डाइविंग बोर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस डाइवर। ये सलाउद्दीन को बेहतर पता होगा क्योंकि अभी अभी मतलब ये ट्यूबवेल से होकर आया हुआ है। सलाउद्दीन जी सर। बताएं किस तरह होता है ये आप जब लगाते हैं इसमें जंप पानी में। सर ये जब जंप लगाएगा ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। सही है तो जब ऊपर जाएगा वो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी सर वो ये यहाँ से मैथ बताएगी ना हमें सर। सर इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख के फिर उस हिसाब से हम बता देंगे जो अभी किया है। मुझे बताएं ये फंक्शन आप लोगों को याद है तो मुझे बताएं हम करते हैं ठीक है। ये 9 नेगेटिव 4 ओवर 9 एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कौन सा 67 फिर इसका तो एच और के फाइंड करना है ना यस मैक्सिमम।
ऐसे ही है। तो ये- आई थिंक ये आप parabola बनेगा सर, प्रॉब्लम को जब ये समझ रहे हैं तो ये इजी हो जाना है। जैसे इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये कहता है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द दिस ड्राइवर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप लोग वर्टेक्स का के कैलकुलेट करेंगे। यू हैड कैलकुलेट इनफैक्ट के, तो इसके लिए वी हैव टू सर हो जाएगा ये। one method is you have to put here f of negative b over 2a, clear? और ये आप कैलकुलेटर से करेंगे। नेगेटिव b, अच्छा b क्या है, व्हाट इज b हियर एंड a व्हाट इज a हियर, तो आप डिवाइड करने के बाद, या फिर जी आप सर 24/9 है। यस, दूसरा मेथड ये है कि आप लोग डायरेक्ट देखें। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने कहा था क्या था फार्मूला, याद है? c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a था आई थिंक, चेक करें। यस सर यही था आई थिंक। तो इस तरह भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला आपके पास डायरेक्ट आपको ये वैल्यू दिया c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो दिस क्वांटिटी, अब इसमें फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं होगी। यू हैव टू सी व्हाट इज c हियर, व्हाट इज b हियर, व्हाट इज a हियर, एंड यू हैव टू कीप और यू हैव टू पुट these all values in this formula and you will get same thing f of negative b over 2a। इसमें आई थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम हियर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है मेरे ख्याल में। या करें नो सर ठीक है। सर नहीं ठीक है सर ठीक सर। है क्लियर है। और कौन सा था आप लोग कह रहे थे? सर बेस बाल वाला जो है ना क्वेश्चन, वो वाला बेसबॉल वाला? बेसबॉल कौन सा है? टॉपिक है ना। अच्छा ये हाइट बॉल, हाइट ऑफ बॉल, इसकी बात करें आप? हाँ सर यही। अच्छा, द पाथ ऑफ फंटेड फुटबॉल मॉडल बाय दिस वन, ये अगेन मतलब किसी फुटबॉल को आप फंट करते हैं तो किक लगाते हैं दूसरे, इन अदर वर्ड्स, तो इसका मॉडल कुछ इस तरह है। ठीक है, अगेन क्वाड्रेटिक है और ए नेगेटिव है, तो यू कैन सी दैट के दिस विल बी पैराबोला डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है तो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज द हाइट इन फीट एंड एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फीट। क्लियर? तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और एफ ऑफ एक्स इसकी हाइट है इन फीट। ओके, हाउ हाई इज द बॉल व्हेन इट इज पंटेड, तो कितना कितना हाइट होगा, उसके बाद तो नीचे होगा, कोई खास लिमिट होगी, उतना ही होगा, ऊपर उससे नहीं जाएगा। तो अगेन ये ए पार्ट सेम आप लोगों से जिस तरह पहले क्वेश्चन किया वो पूछ रहा है। तो ए में आप लोग क्या करेंगे, सिंपली एफ ऑफ नेगेटिव बी ओवर 2a करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो, इज इट क्लियर अप टू हियर? ए क्लियर है? हाँ सर। ए क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर आपको हाउ हाई इज द बॉल व्हेन इज पंटेड और व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द पंट, तो इसमें मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी? बात तो सेम होगी। ये सर फाइंड करना है। सर वैल्यू ऑफ के। वैल्यू आपके तो वही सही मिलेगी ना। यस सर। ए में तो कुछ अलग बात कर रहा है ना, वो ये बोल रहा है ये जहां से हम ये किक मार ये रहे हैं। ये मैक्सिमम की बात करें तो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नेगेटिव बी ओवर 2a। ठीक है, सो दिस आंसर ऑफ पार्ट बी। तो ये कहता है व्हेन इट इज पंटेड, और व्हेन इज पंटेड मींस अगर हम हॉरिजॉन्टल को जीरो कर लें तो ए पार्ट में आप लोग करेंगे जस्ट एफ ऑफ जीरो। तो जीरो करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, आप लोगों को 1.5 मिलेगा। यानी कि ये इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये 1.5 से ना 1.5 हाइट से ये शुरू होगा इस तरह। मतलब इनिशियल में। यानी चलिए यहाँ पर फिर आगे कहीं इसको ना जीरो पर इंटरसेक्ट करेगा और हाइट नेगेटिव नहीं होती। तो इस वजह से या हाइट नेगेटिव नहीं होती तो यहाँ पर आप रखेंगे जो कि इसकी डोमेन होगी। ठीक है, तो एक्स विल बिकम 0 टू सब नंबर, वो हम देखेंगे बाद में कहाँ तक आ रहा है। तो ए में जैसा आप एफ ऑफ जीरो, जो कि अभी आप लोगों को पता है कि इसका 1.5 हाइट है। सो हाउ हाई इज द बॉल व्हेन इज पंटेड, जैसे इसको किक लगती है तो वो इनिशियली 1.5 हाइट के ऊपर होता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ पर इसकी हाइट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट आप लोग नेगेटिव बी अपॉन 2a पुट करेंगे तो ये वाली पॉइंट जो है ना वो है आपके पास नेगेटिव बी। और सर ये बी में तो उसका फॉर्मूला चेंज है ना, बी सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है ना। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया ना कि एफ आप नेगेटिव बी और 2a पुट करेंगे, या फिर क्योंकि ये पुट करेंगे तो आपको ये सेम चीज मिलती है ना, ये तो आपको बताया नेगेटिव अच्छा ठीक है सर, पुट करेंगे करना तो है। क्या होगा, सी सी माइनस
बी स्क्वायर अपॉन 4 है, शायद इस तरह है, ठीक है। ओके, हाउ लॉन्ग इज फन, तो अब हाउ लॉन्ग ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये इन अदर वर्ड्स डोमेन की बात कर रहा है, तो एक्स कहाँ तक जाएगा, 0 टू व्हाट, तो ये इसकी डोमेन है, ये कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है ना हाइट क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो आप लोग दूसरे लफ्ज़ में ना इसको 0 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर सी, चले यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर सी पार्ट you had determined where again this height will become 0, एक तो 0 हो रही है, सॉरी एक तो यहाँ पर नेगेटिव होगी जो कि हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव, क्लियर। दूसरा आपको पॉइंट जो पॉजिटिव आएगा वो आपका वैल्यू होगा, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, नेगेटिव 16 ओवर 225 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 5 एक्स प्लस 1.5 इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे ही 0 करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपकी ना नेगेटिव आएगी, ग्राफ से आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो इसको आपने एक्सक्लूड करना है, मगर जैसे ही दूसरी वैल्यू आपको जो भी पॉजिटिव आएगी वो हमारा इसका आंसर होगा सी। आई थिंक ये आप लोगों से हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, इज देयर इन परेशानी है? No, sir, no pareshani here. ओके, should we move to the next? Yes, sir. अच्छा, ये हमने क्वेश्चन कर लिया इनिशियली, ठीक है, याद है ना, इसको हमने वेरीफाई किया। सर 73 भी करवा दें सर। आए थे आप? कितना सही? ओके, 73 रीड करें मेरा, क्या कहता है? A ranker has 200 feet of fencing to enclose two adjacent rectangular corrals. A, write the area A of the corrals as a function of x. ओके, ये कोरल्स हैं जो मतलब आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, ठीक है, और इनका फेंसिंग है। फेंसिंग क्या होता है, मतलब दूसरे लोग में बाउंड्री है, ठीक है, ये इसकी फेंसिंग की हुई है ना चारों तरफ, वो टोटल कितनी है, 200। तो बता सकते हैं, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर तो वैसे 4 होती, मगर इस फेंसिंग में ये वाली साइड भी इंक्लूड है। चले मैं फेंसिंग लिखता हूँ, फेंसिंग इक्वल 200 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, आपको ये गिवन है, वाई है, ये एक्स है, ठीक है, तो दिस 200 विल इक्वल व्हाट, क्या होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स प्लस एक्स, और ये वाई होगा, और ये वाई, और ये वाई, कितनी एक्स और कितनी वाई, आई थिंक 4x होगा और 3y, एम आई राइट? यस सर। ये गिवन है, यानी कि 200 जो है ना वो फेंसिंग है जो कि 4x प्लस 3y के बराबर। अब आप बताएं कि एरिया क्या होता है, एरिया इन दोनों को कंबाइन कर, जो होगा वही आएगा। क्या होगा, अच्छा देखिए, ये x प्लस एक्स इसकी लेंथ है और y विड्थ है, तो कहना राइट 2x टाइम्स y विल बी एरिया, सो एरिया विल बिकम 2x टाइम्स y, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, मुझे ये दोनों फंक्शन बताएं, ठीक है, तो क्या था, 200 इक्वल टू व्हाट,
4x plus 3y. एक इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं किसी लेट सपोज 4x की या y की मैं इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहूँ, चलिए दूसरी इक्वेशन एरिया ऑफ x बताएं क्या होगा। एरिया कर लेते हैं, जैसे क्या था 2xy. 73 है ना, ये एरिया मैंने लिखा है 2x टाइम्स y, क्लियर। तो अब आपसे एरिया इन टर्म्स ऑफ x चाहता है या एरिया इन टर्म्स ऑफ y चाहता है, वो आप देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपने y को रिप्लेस करना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी y फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोग इसको प्रॉपर बिरयानी नहीं बनाई भाई। y इक्वल टू 200 माइनस 4x ओवर 3, yes or no? So now this area will be as a function of x, 2x तो same, मगर instead of y can I write 200 minus 4x over 3, clear। तो ये क्या होगा 2 times 200 400 over 3, और ये क्या होगा 8 तो कैन आई राइट माइनस 8x स्क्वायर ओवर 3 और प्लस 400 ओवर 3x, जैसा ना। ओके, तो मुझे बताएं कि अब ये ए पार्ट हो गया आप लोगों का। बी में क्या आता है, व्हाट इज डायमेंशन प्रोड्यूस द मैक्सिमम इनक्लोज एरिया, तो इसका मैक्सिमम एरिया की डायमेंशन, भागें सर zoom वाले आप। डायमेंशन से क्या मतलब आपसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज हियर x will become what for maximum area, तो क्या कैलकुलेट करेंगे। as you know that के x of vertex will become negative b over 2a, ठीक है, और b आपको पता है 400 over 3 डिवाइड करेंगे नेगेटिव 8 और, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा इनफैक्ट 3 और 8, क्लियर। और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 400 और 8, बताएं क्या होगी 400। So आएगा 50. 50 से क्या मतलब, ओके ये x अगर 50 है, ठीक है, तो y बता सकते हैं क्या होगा। सर पुट करेंगे x। तो डायमेंशन आप लोगों से पूछ रहा है, तो डायमेंशन में एक x आ गया 50 और y आपका आ गया 200 माइनस 4 टाइम्स 50, ओके। नेगेटिव बी क्या है, ये भी है ना 400 और 3, और इसको आपने डिवाइड करना है। अच्छा सॉरी, हमने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 3 और 8 ए है, मतलब हमने किया बी ओवर ए, तो इसको जैसे मैं 2 के साथ करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये, मतलब ये डिवाइड अगर मैं कर लूँ इसमें 2, तो ये मतलब ये चीज आ रही ना, ये 2 आपने मिस किया तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा ये इनफेक्ट आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा, 25. ये x की वैल्यू 25 फीट है, ठीक है। अब मुझे बताएं y 0 आ रहा है या अब चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इसको 25 लिखता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बताएं कितनी होगी। 4y 0। 8/3 आ रहा है ना। अगेन जैसा आप नेगेटिव बी और 2 कैलकुलेट कर लीजिए,
सी करना सर। नहीं नहीं, कहता है क्या क्वांटिटी हो ताकि आपका कॉस्ट मिनिमम हो, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस दैट कैन गिव यू अ मिनिमम कॉस्ट। सो आपने कॉस्ट मालूम नहीं करना बल्कि क्वांटिटी करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर 2। द सम इज 110। तो आप लोग देखें, इस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू ऑल। सम आपने दो नंबर मालूम करने, 63 में करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं नंबर अर्जुम करूंगा, लेट द नंबर्स आर, एक एक्स कर लें और दूसरा वाई कर लें, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों ने क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। ए पार्ट में आप लोगों को सम दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई जो है ना वो कितना सम है, 110। 110। क्लियर, द सम इज 110। क्लियर, चाहे तो एक्स के लिए सॉल्व करें या वाई, हमने वाई के लिए सॉल्व किया, तो ये फंक्शन जो मैक्सिमम होगा, लेट सपोज मैं इस मैक्सिमम फंक्शन को ना फंक्शन यूज कर रहा हूँ कोई भी, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स विल बिकम एक्स टाइम्स वाई, बट इंस्टेड ऑफ वाई कैन आई राइट 110 माइनस एक्स। तो ये कंप्लीट जो मैक्सिमम हमने लिया था वो एक्स का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल इक्वल टू 110 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताएं, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए आपको पता है कि हम पहले एक्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स क्या है, और वर्टेक्स नेगेटिव बी और 2a। सो नेगेटिव बी क्या है, सर हो जाएगा आगे। 110 अपॉन 2a माइनस 2। क्लियर, तो 110 को आप डिवाइड करें 55। अच्छा एक नंबर 55 है, तो y क्या होगा, अगेन ये भी वही आएगा। तो दो नंबर ऐसे हैं 55 और 55 जिनका सम 110 है, मगर इनकी प्रोडक्ट जो है ना वो मैक्सिमम है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, वैसे ही आप लोग चाहें तो 34 भी, सॉरी 64 भी कर सकते हैं, मगर दिस टाइम 110 की जगह एस रखेंगे, तो आपका जवाब भी इन टर्म्स ऑफ एस आएगा, जो नंबर आएगा वो एस ही आएगा, इन टर्म्स ऑफ एस आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम? Sir, 1.8 the 25 question. 1.8 और 25 उसमें क्या है, वन पॉइंट एट का 25 रीड बुक है आपके पास? चलिए मैं ओपन करता हूँ। अच्छा ये है ना एक्सरसाइज, ये वाला है। Sir, ये 25. इसको रीड करें, क्या कहता है ये,
Exercise 25-28. Use a graphing utility to graph fg and f plus g in the same window. Which function contributes most to the magnitude of the sum when 0 is greater than or equal to x and less than or equal to 2? Which function contributes most to the magnitude of the sum when x is greater than 6? डेसिमल्स पे करूं मैं? जी सर. Okay, let me check. एक है f of x equal 3x. और दूसरा है नेगेटिव x क्यूब ओवर 10. f of x plus g of x. जीरो और 2 की वो बात कर रहा है, सही है? ये अब आप सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोगों के पास ये फंक्शन दो, ठीक है, उनका पहले तो सम करें. ये दोनों सम किए मैंने लास्ट दो रो में. और फिर ये कहता है कि आप लोग इस डोमेन में, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 to 2 है तो बताएं कौन सा फंक्शन डोमिनेट है, और फिर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो कौन सा फंक्शन जो है ना वो डोमिनेट है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इन दोनों इंटरवल में ना देखकर बताना है कि कौन सा जो है ना, इस तरह की प्रॉब्लम हमने किए थे, शायद आप लोगों को पता है. ये चलें, फिलहाल आप लोग इस जूम करें 0 to 2 में. 0 to 2 में मुझे बताएं, कंपेयर करके बताएं कि f of x डोमिनेट है या g of x है. चलिए मैं इसको जूम करता हूँ फिलहाल. क्योंकि आप लोगों को पता है कि f of x जो है ना वो ग्रीन अपवर्ड है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी डोमेन में ये g of x डिक्रीज हो रहा है. मगर आप इस ग्रीन वाले को कंपेयर करें कि ग्रीन किसके पास ज्यादा जा रहा है तो वो डोमिनेट होगा ना. अगर ये ग्रीन भी डिक्रीज होता तो हम कहते g of x. अब इस केस में आप लोग पता है कि ग्रीन इंक्रीज हो रहा है जस्ट लाइक रेड. जिस तरह रेड जा रहा है वैसे ही, और रेड आपको बताया क्या है, f of x है. तो हम ये कहेंगे कि इस डोमेन में अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 to 2 है, देन दिस f of x विल बी डोमिनेट द सम. मगर जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 की बात करेंगे तो उसका मैंने अलग से बनाया है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक किया है 2 और 6 के दरमियान वाले नंबर. तो ये 6 से ऑनवर्ड ये ग्राफ जो है ना नीचे डिक्रीज हो रहा है. तो इसमें आप लोगों का क्या आंसर होगा बताएं? f होगा g होगा? जी जी. why not f? सर, क्योंकि ये जो हमारा चौथा वाला फंक्शन है वो सर
सेकंड जी ऑफ एक्स से मुशाबहत कर रहा मतलब इसके साथ जा रहा है और डोमिनेट हो रहा है हालांकि ये डिक्रीज हो रहा है और ऊपर रेट जो है ना इसी डोमेन में इंक्रीज हो रहा है, मगर जब हम सम करेंगे तो सम डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब इस सम में ना ये जी ऑफ एक्स डोमिनेट कर रहा है तो सम को। तो आपके क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, अगर आप रीड करेंगे तो ये कहता है कि आप बताएं। लेट सपोज मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, देखें अब क्या कहता है। which function contributes most to the magnitude of the sum when x is 0 to 2। तो 0 to 2 में इस एक क्वेश्चन में हमने कहा था फंक्शन f ऑफ x जो है ना, अगर आपकी वैल्यू 0 to 2 है तो वो उसका मैग्नीट्यूड जो है ना कंट्रीब्यूट करेगा मोस्ट, और g ऑफ x करेगा मैग्नीट्यूड अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6। इस केस में हमने ये कहा। तो इसी तरह आप लोग ग्राफ से रिलेटेड आप लोग जो है ना इन तमाम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप लोग 0-2 में जूम करके देखेंगे, ग्रेटर 6 में देखेंगे, जो सम जिसकी तरफ आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया, और कोई प्रॉब्लम